Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Kasakai, Kirohalai, Kem Cho. Welcome to Spotlight with Abha, and I'm your host, Abha Jadhav. Friends, today we are going to meet an amazing world record holder who has achieved a lot of laurels in a very young age. He is an author, trainer, life and NLP coach, and also a soft skill trainer. Friends, please help me welcome Mr. Akash Bhabar, CEO, ABC International from Nasik, Maharashtra. Welcome, Akash, to Spotlight with Abha. Yes, thank you. Thank you, ma'am, for inviting me. And it's a great pleasure for me. Thank you. Friends, let me give a brief introduction of Mr. Akash Bhabar. Mr. Akash Bhabar, author, CEO of ABC International, international training organizer, certified life and NLP coach, certified soft skills trainer, multi-awardee, had written 2 books and both are available on Amazon and Amazon Kindle. The first book is 20 Essential Habits for Success and the second is 5 Essential Qualities for Success. As a trainer, he conducts 21 days workshop on habits. Mr. Akash Bhabar is a business booster coach for trainers, coaches, and mentors. He helped them to grow their training business as well as he also provides training and platform for trainers, coaches, and mentors to explore themselves. He organizes various international business summits where trainers from various countries participate and share their knowledge and experience. He had invited various expert trainers on his platform and created very affordable and quality program like Train the Trainer, ABCD of Business, Executive Life Coach, and many more. He takes a lot of initiatives. He wants everyone should be healthy. Hence, ABC International started free yoga classes for all people. He focused on personal, professional, wealth and health, spirit and spiritual development of individuals. As a person, he always believes in one sentence, पढ़ो ऐसे कि आप खुद पढ़ा सको. So, be literate to literate others. Wow, this is really fantastic. What a noble belief. So, Akash, शुरू करते हैं आपके बचपन से. छोटा आकाश कहाँ जन्मा और उनका बचपन कैसा था और उसके बाद आपकी पढ़ाई कैसी रही? सबसे पहले तो मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मैम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है कि बचपन, तो देखिए मैं एकदम छोटे विलेज से बिलोंग करता हूँ. कासारी उसका नाम है. तो कासार इज लोकेटेड इन नांदगांव तालुका है और नासिक जिले में आता है. तो 10वीं तक मैं मेरे गांव में ही पढ़ा हूँ. गवर्नमेंट स्कूल होता है जैसे हर एक का. मैंने काफ़ी सारे लोगों से ऐसे सुना है हम गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं और इतना कुछ कर जाते हैं. वैसे ही है. स्कूल में अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं. पर बाद में जैसे जैसे हम एक स्टैंडर्ड आगे बढ़ते हैं तो कुछ अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं और उस एक्सपीरियंसेस की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि कॉपी करना एक गलत बात है. और जब मैं 9th-10th में था तब मुझे एक पढ़ाई करने से एकदम मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मुझे पढ़ाई करना है. क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि कुछ कॉपी करते थे लोग और मुझे वो पसंद नहीं था. और मेरे पिताजी हमेशा कहते थे तुम 40-50 मार्क्स भी लेके आए तो भी चलेगा, पर बिना कॉपी के करके आना. कॉपी मत करना. और वो टाइम में जिस अभी स्कूल में हम गांव में रहते तो इतना कुछ लोग ऐसे मेंटर वगैरह हमारे मुझे तो नहीं थे. तो वो टाइम में फिर मुझे अचानक से 10वीं में ऐसा हुआ कि मुझे वो पढ़ाई से ऑटोमेटिकली मन हट गया. मतलब ऐसा लगता नहीं था मुझे, मैं अलग सोचने लगा था. पर ये गलत बात थी. मुझे बाद में रियलाइज हुआ ऐसा करना नहीं चाहिए था. अच्छे मार्क्स लेके आते थे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता. पर बाद में जैसे पढ़ाई हुई तो अच्छा हुआ. जो भी पढ़ता था मैं अच्छे से पढ़ पाया. और 4th स्टैंडर्ड से मुझे अच्छी एक मैम मिली
जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा डेफिनेटली, देवकर मैम करके है। तो उन्होंने 4th स्टैंडर्ड में जब हम थे तब से उन्होंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। इंग्लिश में हमारे इंग्लिश के लिए स्पेशल टीचर रहते थे, पर वो अवेलेबल नहीं थे, तो मैम ही हमें सिखाते थे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम वो टाइम से ही सीख गए। फिर बाद में लोग जब हमारे गांव में ऐसी परिस्थिति थी जो 10वीं तक भी बोल नहीं पाते थे, तो हम 7वीं 8वीं में अच्छे से बोल पाते थे, या थोड़ा बहुत तो आता था, मतलब अच्छा हुआ। और यही कुछ इतना कुछ खास नहीं रहा। पर पढ़ाई जब हम बात करते हैं, तो जब 10वीं के बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो 10वीं अभी हुआ है, तो उसके बाद क्या करना है, तो मैं उससे पहले जो करियर का है, मैं वो स्टार्ट करने से पहले एक एक्सपीरियंस, एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ क्यों मैं वो करना चाहता था, या मुझे क्यों ऐसे मेरे पिताजी कहते थे कि तुम मार्क्स मत लेके आओ, पढ़ाई कॉपी करके मत लेके आओ, जितना पढ़ सकते हो, जितना कर सकते हो उतना ही करो। तो एक हमारे गांव में एक बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो एजुकेशन से काफी बड़े हैं, विचारों से ज्यादा बड़े हैं। तो उनके एक लड़का है, वो यूएस में जॉब करता था, तो उनकी शादी थी, और उस शादी में मुझे लेके गए थे मेरे पिताजी। और स्पेशली उस शादी में लेके जाने का पर्पस भी ये था। तो देखिए, हर एक पिताजी का या पेरेंट्स का अपना एक इच्छा होती है कि मेरा बेटा भी कुछ ऐसा करे, या कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों के जैसे बने। तो मुझे शादी में लेके गए, उस रात में नाइट की शादी थी, तो बताया ऐसे ऐसे करता है लड़का, वो भी इंजीनियर है, तो देखो कैसी शादी हो रही है, कितने लोग उसको सम्मान देते हैं। तो तब से मुझे वो एक इंटरेस्ट आ गया कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है। और हम दोनों का एक थॉट प्रोसेस बन गया था, हम फिक्स हुए थे कि हाँ आगे चल के इंजीनियरिंग में करना है। पर सिर्फ वो थॉट था, क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे कुछ मेंटर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, पर फिक्स था। 4th स्टैंडर्ड से ही, तब से ही फिक्स था क्या ऐसे कुछ इंजीनियर बनना है, और उसके लिए आगे प्रयास करेंगे। और बस यही जर्नी थी। बचपन इतना, और कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो काफी हेल्पफुल रहे। तो बचपन से एक अच्छा लड़का, सभी लोग बोलते थे अच्छा लड़का है, पर पता नहीं मुझे कैसे हो, पर मानते हैं कि हाँ भाई अच्छा लड़का है, समझदार है, पोलाइट है। तो दैट्स ऑल। बिल्कुल, अभी तो मैं भी कहूंगी कि आप बहुत अच्छे बच्चे रहे होंगे, कि जहां पर सब कॉपी मार के पास हो रहे थे, वहां पर आपने अपने पिताजी की बात मानते हुए एक ईमानदारी से अपनी परीक्षाओं में आपने अपीयर किया, और बिल्कुल उस चीज को फॉलो किया जो आपके पिताजी ने कहा कि भले कम नंबर आए, पर जो लाओ ईमानदारी से लाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जब अब ये आपने बताया कि किस तरह से एक इंजीनियर बनने का सपना दिमाग में पनपने लग गया था, तो उसके बाद आपने किस तरह से अपने करियर को एक नई उड़ान दी, और किस तरह से आप करियर में आगे बढ़े? हाँ, तो करियर की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले अभी मैं 10वीं का जो सिचुएशन है, आप भी जान पाएंगे कि मेरा एकदम पढ़ाई से मन हट गया था, मुझे वो अलग माइंडसेट में था। पर इतना तो फिक्स था कि हाँ इंजीनियरिंग करना है। तो इंजीनियरिंग करना है मतलब क्या करेंगे, तो साइंस करना, 11th 12th वो तो काफी सारे लोग करते थे, कॉमन हुआ था। पर फिर भी एक हर एक का रहता है कि भाई कोई ऐसा गाइडर मिले जो हमें समझाए कि एग्जैक्टली क्या करना है। 10वीं के बाद मतलब मुझसे ज्यादा मेरे पिताजी मतलब एक्साइटेड थे कि अभी कैसे करें। तो फिर हमारे गांव में जो सरपंच जी है, जिनको हम वो टाइम पे जो सरपंच थे, तो उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, विजय इप्पर जी है। तो उनको मेरे पिताजी काफी मानते थे, तो और वो अच्छा गाइडेंस भी करते थे। तो उनको बुलाया, उनके बेटे भी बाहर पढ़ते हैं, तो पिताजी ने उनको एक दिन बुलाया घर पे। और अभी दूसरे किसी से गाइडेंस लेने से अच्छा है कि भाई कोई अच्छा आदमी है जिसको पता है, जिसने दुनिया देखी है, तो उनसे पूछते हैं। तो उनको बुलाया, चाय पानी हुआ, उसके बाद उनको बताया कि ऐसा ऐसा है कि इसको भी इंजीनियरिंग करना है, 10वीं तो हुआ, तो अभी क्या करे। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो आकाश, करना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, करने के लिए बहुत कुछ है। पर अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, बाहर रहना है, तो बाहर कैसा खाना मिलता है वो तुम ही जाने, या लोग ही जाने कैसा देंगे।
वो सब तुम्हें एडजस्ट करना है। बाहर कैसे कैसे लोग मिलेंगे, उसमें अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हुई तो वो सहन करने की तुम्हारी शक्ति होनी चाहिए। अगर तुम सहन कर सकते हो, पहले से ही माइंडसेट बना लोगे तो ही जाना, नहीं तो मत जाना। खामखा पैसे वेस्ट मत करना। पहले से तुम्हारे माता पिता गरीब है, उनको और डुबाओ मत। हाँ, पर अगर तुम्हें करना है तो सच में जा सकते हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो मेरा भी मन था, मैंने भी ठान लिया था अभी कि हाँ, करना तो इंजीनियरिंग है, अपना जो भी है तो करते हैं। तो फिर हम उनको बताया कि ये डिसीजन फाइनल है, इंजीनियरिंग ही करना है। तो बोले ठीक है, इंजीनियरिंग करना है, अभी तुम मान ही नहीं रहे हो, करना ही है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तुम करो। फिर उसमें क्या, हम सपोर्ट तुमको करेंगे, जो भी चाहिए वो सब कुछ तुम्हारे पेरेंट्स करेंगे, बाकी कुछ सपोर्ट चाहिए हम भी करेंगे। तो करना है तो फिर दिल से करो। और फिर तब से मतलब कोई बड़ा आदमी जब परमिशन देता है ना, तो ऐसा लगता है हाँ उनका भी मानना है कि करो। और पिताजी को भी लगा कि नहीं, हाँ अच्छे बड़े इंसान ने बताया तो भी करना है। और हमेशा एक बात, अभी हम गांव से है तो एक बात ये भी रही है कि काफी सारे जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं या जो हमें जानने वाले लोग होते हैं, पर उन्होंने कुछ देखा नहीं होता है, पर वो लोग हमेशा निगेटिव चीजें बोलते हैं। तो काफी परेशान किया मेरे पिताजी को भी। और मेरी सिस्टर अभी रशिया में एमबीबीएस करती है, तो उसके टाइम पे भी काफी लोगों ने परेशान किया कि क्यों इतना दूर जा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर भी क्यों करते रहते हो, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, दूसरे भी तो पढ़ाई कर सकते हैं। पर मेरे पिताजी ज्यादा पैशनेट है, ऐसा मैं कहूँगा। तो वो उन्होंने एक बार ठान लिया तो करना है। तो अभी हम भी रेडी थे उस चीज के लिए। और कुछ अच्छे अच्छे लोग जो जिन्होंने दुनिया देखी है, ऐसे हम बोल सकते हैं, जो काफी सक्सेसफुल है, ऐसे कुछ लोगों से मेरे पिताजी हमेशा बात करते रहते हैं, उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। और उनको पूछते हैं कि भाई ये करना सही है क्या, अभी ये कर रहा है, ये चलेगा क्या। तो वो लोग हमेशा बोलते हैं कि हाँ ये सही है, आप करो। उनको मोटिवेट करो, पढ़ाओ बच्चों को, ये करो। तो उनको ये अच्छा लगता है। मतलब कुछ सक्सेसफुल लोग बोलते हैं ना, तो उनको विश्वास हो जाता है, हाँ नहीं ये लोगों ने बताया तो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही बताया। और फिर वो निगेटिव बोलने वाले काफी सारे लोग रहते हैं, जैसे अपने रिलेटिव में कुछ अंकल्स वगैरह वो लोग होते हैं, वो पहले से ही मतलब बिना कुछ पूछे उनको सिर्फ एक सेंटेंस में सब्जेक्ट निकाले कि ये करना है, तो उनके कारण रीजंस आना शुरू होते हैं क्यों नहीं करना है उसका। तो बहुत बार ऐसा होता है। पर सभी ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके फाइनली हम मैंने एडमिशन लिया डिप्लोमा में, इंजीनियरिंग डिप्लोमा हुआ। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा पढ़ो ऐसे कि आप खुद पढ़ा सकते हो। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैंने ऐसे ही मतलब हमारे जो एचओडी थे काफी सपोर्टिव थे। वो हमेशा कहते थे कि आप जितने भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछो, सिर्फ आप मतलब अलग कुछ करो मत, आप क्वेश्चन पूछो, सीखो, उसके लिए सब कुछ फ्रीडम है। तो ऐसे ही वातावरण में हम आगे बढ़े और उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। फिर बाद में जैसे मेरा डिप्लोमा खत्म हुआ, मैंने डिप्लोमा के क्लासेस लेना स्टार्ट किया। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स हम बनाते थे। तो काफी कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आने का एक प्लान हुआ। प्रोफेशनल लोगों से मिलने की वहाँ से स्टार्टिंग हुई। और प्रोफेशनल जो भी हम जिस फील्ड में है एजुकेशन के, तो वो फील्ड में वहाँ से एंट्री हुई। और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिले, एजुकेटर्स मिले जो सपोर्ट करते हैं। और इसके लिए फिर से एक बार सभी गुरुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से ही आज कुछ कर पाए हैं। ऑसम। आपका जो दृढ़ निश्चय है, आपके मन का जो संयम है, और आपके दिमाग विचारों की जो मजबूती है, और साथ ही आपके पिताजी का जो एक पैशन आपको आगे बढ़ाने का है, उसको मैं सल्यूट करती हूँ। और आपके एफर्ट्स को डेफिनेटली मैं शत शत नमन करती हूँ। क्योंकि अगला जो सवाल मैं पूछने वाली हूँ वो आपके एफर्ट्स की पराकाष्ठा है ना। आपने हाल में एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जहां पर अंक 12 का जोरदार तरीके से बोलबाल रहा। तो मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी, ये आप बताएंगे कि ये जो रोमांचक और अनोखा रिकॉर्ड बनाया, तो ये क्या था?
यस, तो अभी ये जो रिकॉर्ड बनाया है इस वजह से काफी सराहना मिली है मुझे बाय गॉड्स ग्रेस, और काफी सारे लोगों ने सपोर्ट किया। उसके लिए सबसे पहले तो उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में हेल्प की, क्योंकि उनके बिना ये करना पॉसिबल ही नहीं था। सभी ऑथर्स को एक बार से धन्यवाद। उन्होंने ट्रस्ट रखा। तो कुछ एक महीना पहले मैंने सबको इनविटेशन दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ हम प्लानिंग करने वाले हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड का, और जो भी बुक लिख रहे हैं, मतलब अपने जो भी नेटवर्क में लोग थे उनको मैसेज किया था, और जो भी बुक लिख रहे हैं वो अपन पब्लिश करेंगे उसे। तो सब कुछ एक महीने में ही प्लान हुआ। उससे पहले एक डॉक्टर दिनेश गुप्ता सर है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, काफी दिन पहले से हुई थी, वो हम रेगुलर कांटेक्ट में थे। और फिर बाद में उन्होंने उनसे मैंने जब ये डिस्कस किया एक ऑफलाइन सेशन में, मेरे मेंटर भी मेरे साथ थे, डॉक्टर मनोज सहगल सर, और फिर हम तीनों ने डिस्कस किया कि कुछ ऐसा कर सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड का, तो इतने सारे अभी इवेंट कर रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए काफी इजी रहा, क्योंकि पहले से ही काफी सारे लोग मेरे कांटेक्ट में थे, तो उनसे बात करना इजी था। एक सेशन ऑर्गेनाइज किया फिर हमने कि 12 तारीख है और 12वां महीना है, और 21 को भी उल्टा करे तो 12 होता है, तो ऐसे कुछ 12 का लिंक करते हैं। तो 12 एक्टिविटीज उसमें हमने रखने का प्लानिंग किया, और 12 एक्टिविटीज में फिर हम 12 घंटे का प्रोग्राम 12 तारीख को 12वें महीने में, और 12 गेस्ट के साथ, 12 कंट्री के 12 ट्रेनर्स के साथ, 12 स्टेट के 12 ट्रेनर्स के साथ, 12 डिस्ट्रिक्ट के 12 ट्रेनर्स के साथ, और 12 टॉप सिटीज के 12 ट्रेनर्स के साथ वो 12 घंटे का प्रोग्राम करने का हमने प्लान किया। और ऐसे उसमें कुछ 4 थीम्स रखे थे। थीम्स रखने के पीछे पर्पज भी ये था कि एक ही चीज पे काम ना हो, सभी चीजों पे अगर सक्सेसफुल बनना है तो हर तरह से हर फील्ड में हमें काम करना चाहिए। तो फिर बिजनेस का थीम उसमें रखा था, हैबिट्स का थीम उसमें रखा था, क्वालिटीज का रखा था, और उसमें यूनिवर्सल लॉज का भी रखा था। अगर हम नियमों को जाने तो आसान होता है ना सक्सेसफुल बनना, तो वो भी उसमें रखा था। और इतने लोग, मतलब लोगों का इतना प्यार है, वो देख के भी कभी कभी ऐसा लगता है कि सच में ये भगवान की कृपा है कि लोग 12 बजे भी हमारे लिए सेशन लेने के रेडी है। तो 12 बजे कोई सेशन लेना है और वो सपोर्ट करते हैं, तो कितना मतलब बहुत दिल भर के आता है। तो सबसे पहले उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एबीसीडी के लिए रात में भी सेशन लिए। तो थैंक यू फॉर ऑल। और मैं बताऊं एक और 12 इसके साथ जुड़ा कैसे। यस, आपको जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हाथ में, जब आपको मेडल पहनाया गया और वो जो ट्रॉफी दी गई, वो भी बाई चांस, एक कहते हैं ना योगानुयोग, 12 बजे ही आपको वो ट्रॉफी मिली थी। यस यस एब्सोल्युटली। और वो योगी है, हम ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसे ही संकेत है। तो और दिनेश गुप्ता सर, अनीता मैम, उनका भी काफी सपोर्ट रहा। उन्होंने मतलब जितना भी हो सके उनकी तरफ से उन्होंने कोशिश की है कि इनको सपोर्ट करे। और पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान की कृपा हो या पता नहीं, मुझ में ऐसा कुछ है। पर मेरे पास ना तो कुछ पैसे है या मैं कोई पैसे दे के इवेंट करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये सब कुछ फ्री होता है, फिर भी लोग इतने प्यार से वो करते हैं। तो बाय गॉड्स ग्रेस ये सब कुछ पॉसिबल होता है। और ये ताज होटल में, जैसे शायद आप भी वहाँ पे थे, तो आपने भी देखा कि ताज होटल में ये सब कुछ फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ और काफी अच्छा रहा। और उसमें एक और बड़ी बात ये हुई कि ये ट्रेनिंग सेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ट्रेनिंग्स का था, और उसमें एक ट्रेनर ने ही, जो नंबर 1 माइंड ट्रेनर है इंडिया के, उन्होंने वो अवार्ड दिया है या सर्टिफिकेट उन्होंने उनके हाथ से मिला। वो एक और बड़ी बात थी मेरे लिए। तो ये सब कुछ जर्नी रही। और इसके लिए फिर से एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स को और मेरे जो भी मेंटर्स थे उन सभी को धन्यवाद। वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग अमेजिंग आकाश। मतलब फिर से एक बार कहते हैं ना कि आपने अगर मन में ठान ली है तो पूरी दुनिया आपको हेल्प करने लग जाती है। जैसे कि वो एक बहुत फेमस डायलॉग है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको पूरा करने में आपका साथ देती है।
तो शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि आपने सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं कैसे करूंगा, पर क्योंकि आपका वो विचार, वो सोच, आपका वो लक्ष्य इतना मजबूत था कि भगवान ने वो सारे सर्कमस्टेंसेस, सारे जो कहते हैं ना कि सराउंडिंग्स आपके लिए ऐसे रेडी कर दिए, लोगों की मानसिकता ऐसी बना दी कि हर कोई अपने आप आपको सपोर्ट देने के लिए आपके साथ चलने को तैयार हो गया। वेरी नाइस। सो अब आपकी लाइफ का विजन, मिशन और पर्पस क्या है? देखिए, अभी मैं विजन, मिशन या पर्पस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ट्रेनिंग फील्ड में आया। ये मेरा अभी फर्म डिसीजन है कि अभी हम ट्रेनिंग्स में कुछ करना है। तो ट्रेनिंग्स में करेंगे तो क्या, ट्रेनिंग्स में क्या होता है, जनरली हम लोगों को हेल्प करते हैं, अपने आप को तो डेवलप करते ही, सबसे पहले वो काम वही है, अपने आप को बेहतर बनाना, और साथ साथ में हम लोगों को बेहतर बनाने में कोशिश करते हैं। तो जो भी एबीसीडी का जो मेन पर्पस है, क्यों स्टार्ट किया एबीसीडी, एबीसीडी का विजन यही है कि लोगों के जीवन से अनसक्सेसफुलनेस को निकालना है, उनको सक्सेसफुल लाइफ देनी है, और वो वर्ल्ड वाइड काम करना है। इसलिए एबीसीडी इंटरनेशनल है, और एबीसीडी का लॉन्ग फॉर्म होता है आकाश भाबड़ कम्युनिटी डेवलपमेंट। और ये भी एक और बाय गॉड्स ग्रेस में मानता हूँ कि ये लॉजिक बन गया, आकाश भाबड़ कम्युनिटी डेवलपमेंट एबीसीडी। और एबीसीडी के पीछे दूसरा एक रीजन ये है कि अगर हम कोई भी शुरुआत करते हैं अपने करियर की, मान लीजिए या कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, एबीसीडी से शुरुआत करते हैं ना। तो बचपन में हम एबीसीडी सीखते हैं। तो अगर हमें बिजनेस करना है या ट्रेनिंग में आना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर करना है, तो क्यों ना फिर हम एबीसीडी से शुरुआत करें। ऐसा एक उसके पीछे एक थॉट था। तो इसलिए हमने एक प्रोग्राम का नाम भी एबीसीडी ऑफ बिजनेस रखा है, जो बिजनेस ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। आप आइए, बिजनेस करना सीखिए और एबीसीडी से शुरुआत कीजिए। तो एबीसीडी यहाँ पे सब कुछ सपोर्ट करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उनको जो भी नॉलेज चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, वो सब कुछ यहाँ से होता है। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने का पर्पज ये था कि हम बेसिकली 5 एस्पेक्ट पे काम करना चाहते हैं, और वो है पर्सनल, प्रोफेशनल में अपना बिजनेस वगैरह वो आ गया, करियर आ गया। उसके बाद हेल्थ, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी और वेल्थ। तो इन सब पे काम होता है एबीसीडी के मार्फत। कैसे होता है, तो हम ट्रेनिंग जब प्रोवाइड करते हैं तो उसमें पर्सनल डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ हम बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें अपने आप के करियर को वो डेवलप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ वहाँ पे लोगों का अच्छा बनता है, वेल्थ वो जनरेट कर सकते हैं। फिर आता है सोशल। तो जब भी हम एक नेटवर्क में मिलते हैं या इंटरनेशनल नेटवर्क बना है, अभी इतने सारे लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं, अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं, वो नेटवर्किंग करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस लोगों को मिलता है। सोशली हम कितने सारे कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास भी कुछ कॉन्टैक्ट नहीं थे। मैं 2 साल पहले मैं किसी से कांटेक्ट करना भी अच्छा नहीं समझता था, मतलब ज़्यादा नेटवर्क बनाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। पर मैंने मेंटर से सीखा, जिसका नेटवर्क बड़ा है उसका नेटवर्क बड़ा है। तो तब से मैंने नेटवर्क शुरू किया। तो वो एक हैबिट बना ली कि हम जिससे भी मिलते हैं हम उनसे कुछ सीख सके, उनसे अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाए। और सोशली अगर हम डेवलप होते हैं तो कुछ नए अपॉर्चुनिटीज हम किसी को दे सकते हैं या किसी से हमें मिल सकती है। और उसके बाद फिर हेल्थ पे काम करना था। तो स्पेशली हमने 8-9 महीने से एक फ्री योगा सेशन हम हर रोज करते हैं। तो एक मैम है बाय गॉड्स ग्रेस, वो भी हमारे लाइफ में ऐसे वक्त पे आई जब ये सब कुछ प्लानिंग चल रहा था 5 एस्पेक्ट का, और उन्होंने भी काफी सारा सपोर्ट किया। तो वो हमेशा हर रोज सुबह 5:30 से 6 बजे तक, 7 बजे तक वो सेशन कंडक्ट करते हैं। मतलब एबीसीडी की तरफ से वो एक योगा सेशन फ्री है, जो भी करना चाहता है ज्वाइन कर सकते हैं, और वो हेल्थ को डेवलप करने के लिए। और लास्ट में है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअलिटी का एक यहाँ पे एक मजेदार ये भी है, इस पे एक एक्स्ट्रा बात करना चाहूंगा मैं 2 मिनट। तो ये कि हर एक अपना ग्रैटिट्यूड, मतलब ग्रैटिट्यूड करना हर एक बोलता है, या हर एक मेंटर अपने ट्रेनीज को बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, या एक अपनी जो संस्कृति है, मैंने जितना पढ़ा है या मैंने जो सुना है उसके बेस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि
अपने संस्कृति में हर चीज के लिए प्रायश्चित है। मतलब कोई आपने बुरा काम किया तो उसके लिए प्रायश्चित है, सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है, और वो है कृतज्ञता। अगर आप कृतज्ञता नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, वो आपका सीनी है। तो कृतज्ञता होना चाहिए। तो हम जैसे अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें पाला पोसा इतना बड़ा किया, तो उनके प्रति हमें कुछ करने की इच्छा रहती है, या कोई भी हो जनरली हमें मदद करता है तो हम उनके बाद में मदद करना चाहते हैं। तो क्यों ना फिर हम एक प्लेटफॉर्म पे सभी लोग मिले हैं, एजुकेटेड लोग हैं सभी, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम एक्स्ट्रा स्पिरिचुअली में। तो अगर हम एक एग्जांपल के साथ और बताना चाहूंगा कि अगर हम अपने माता पिता का एग्जांपल लें, उनके प्रति कृतज्ञता हमें करनी है, तो उन्होंने हमें इतना बड़ा किया है। अगर हम 4-5 साल ऐसे बैठे रहे घर पे, कुछ काम धंधा नहीं किया, सिर्फ अपने माता पिता की हम स्तुति करें कि आप कितने अच्छे हो, आप मुझे इतना संभालते हो, इतना अच्छा है ये सब कुछ, और 4-5 साल बाद उनका रिएक्शन क्या रहेगा? वो यही बोलेंगे ना कि भाई अभी बहुत हो गया स्तुति करना, अब रुको और कुछ काम धंधा करो, 2 पैसे कमाओ। सही है कि नहीं? मतलब अपने माता पिता भी वो कह सकते हैं कि कुछ करो, तो कुछ करने की बात है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि अपने माता पिता हमसे प्यार नहीं करते, वो तो करते ही है, पर यहाँ पे कुछ करने की, कर दिखाने की वो बात कर रहे हैं, और कर्तव्य हमारा है तो हम करना चाहिए। तो भगवान ने भी हमें भेजा है, तो हम सब भगवान को मानते हैं, और एक कोई ना कोई भगवान, किसी भी भगवान को मानते हैं, पर एक सुपर पावर है जिनको हम सब लोग मानते हैं, और सभी लोग अगर सुपर पावर को मानते हैं तो उसके प्रति हमारी कुछ कृतज्ञता होनी चाहिए। और कृतज्ञता अगर हम अर्पण करते हैं तो कैसे करें? सिर्फ भगवान का नाम जपने से वगैरह वो तो करना ही है, वो तो सबको करना है, पर उसके साथ एक्स्ट्रा क्या करेंगे? सभी एक माता पिता के बहुत सारे बच्चे हैं और वो सभी वही कर रहे हैं, तो किसी ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया तो उसको ज्यादा सराहना मिलेगी ना। तो हम अगर एजुकेटेड है, हम कुछ विचार कर सकते हैं, तो और क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? तो हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से, जिससे भगवान को भी अच्छा लगेगा कि नहीं, हाँ मेरा कुछ बच्चा है वो कुछ अच्छा कर रहा है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम जो भी एबीसीडी के मेंबर्स है उनका एक ग्रुप है, और वो ग्रुप में हम क्या करते हैं कि हर एक महीने में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सभी ट्रेनर्स आते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, वो कुछ लोग ट्रेनिंग में एक्सपर्ट होते हैं तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट है तो वो कंटेंट डिजाइन करते हैं, कुछ लोग प्लानिंग में एक्सपर्ट है वो प्लानिंग करते हैं कि कैसा सेशन होना चाहिए, मॉडरेशन में कुछ लोग एक्सपर्ट है वो मॉडरेशन करते हैं, और ऐसे सब मिलके वो काम करते हैं। और सब मिलके जब काम करते हैं तो लीडरशिप क्वालिटीज अपने आप अपने अंदर क्रिएट होती है। प्लानिंग में हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं, एक दूसरे को साथ लेके काम करना होता है, टीम वर्क होता है, तो ये सब में काफी मजा आता है। और वो क्यों करना है? ना तो एबीसीडी के लिए करना है, ना आकाश भाबड़ के लिए करना है, ना तो इंडिविजुअल या किसी मेंबर के लिए करना है, वो करना है भगवान के लिए। अपनी जो भी एक्सपर्टी है वो भगवान को समर्पित करनी है। और फिर वैसे सब प्रोसेस करते हैं, सभी लोग काफी इंजॉय करते हैं, और ऐसे काफी सारे प्रोग्राम हमने किए भी है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो या स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, ऐसे प्रोग्राम हमने किए हैं, और काफी उसमें से मजा भी आया, सबको सबने एंजॉय किया। और वो एक कृतज्ञता हम भगवान के इसमें रखते हैं कि हाँ भगवान के लिए ये सब कुछ हुआ, और उसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं हम, या किसी ट्रेनर को मिलते भी नहीं है। और उसमें जो हम सर्टिफिकेट के लिए चार्जेस लेते हैं वो एज ए फंड राइजिंग हम बोलते हैं, और वो फंड राइजिंग जो भी अमाउंट एक छोटा आता है, इतना नहीं है, पर जो भी है वो अमाउंट जो भी आता है वो हम क्या करते हैं, ना तो एबीसीडी लेता है, ना मैं लेता हूँ, ना कोई ट्रेनर्स को मिलता है। वो अमाउंट जो है वो अपने ग्रुप मेंबर्स में से, जो भी ट्रेनर्स से 25 मेंबर्स का ग्रुप है, उसमें जिसको भी जरूरत है तो वो यूज कर सकता है। और यहाँ पे कैसे होता है कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं, हाँ भाई इनको हमने दिया, हाँ हमने दिया, देने वाला अलग लेने वाला अलग। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं, तो देने वाला ना अलग है ना लेने वाला अलग है, क्योंकि देने वाला ना तो एबीसीडी दे रहा है ना आकाश दे रहा है, और लेने वाला कोई मेंबर वो मेरे से नहीं ले रहा है या किसी और मेंबर से नहीं ले रहा है। वो जो अमाउंट है
वो क्या है कि वो भगवान के प्रति सबने कृतज्ञता व्यक्त की और उस काम से वो आई है। मतलब वो उस पे किसी का राइट नहीं है, वो अपौरुषीय लक्ष्मी हम बोल सकते हैं, राइट। तो जो भगवान की पैसे हैं वो भगवान के पैसे हो गए ना, भगवान का काम था। तो भगवान के पैसे हम यूज कर सकते हैं, तो हमारे मेंबर्स में से कोई भी वो यूज कर सकता है। देने वाला भगवान है और बाद में वापस देना है, अपना काम हो गया, वापस से वो किसी एक ही मेंबर के पास रहते हैं, उनको वापस देना है और फिर किसी और को चाहिए तो वो ले सकता है। तो ये इतना अच्छा सिस्टम मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने किया है। और ऐसे 5 अंगों पे काम होते हैं और जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम थे इसमें से कोशिश यही है कि हम ये बरकरार रखें। और काफ़ी सारे ट्रेनर्स एबीसीडी से एसोसिएट है, वो हेल्प करते हैं, मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम रेगुलरली कंडक्ट करते हैं। वाह, कितना कितना सुंदर विचार और कितना प्योर इसके पीछे पर्पस है कि काम तो हो ही रहा है, साथ ही किसी न किसी की इनडायरेक्टली मदद भी हो जाती है। बहुत सुंदर। तो अभी आपके फ्यूचर में आने वाले कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनसे लोग लाभ ले सकते हैं? अभी तो हमने क्या किया है कि अभी आपको भी पता है, रिसेंटली हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और हमेशा लोग बोलते हैं ना कि सक्सेस ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स अ जर्नी। और यही जर्नी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। और 22 फरवरी को हम एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जिसमें 22 ऑथर्स के 22 बुक लॉन्च करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ काफी सारे बुक्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ये रेगुलरली मंथली होते हैं। बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, मेंटरिंग प्रोग्राम से वो रेगुलरली होते हैं। और उसके बाद अभी हमने एक इंडिया टूर करके स्टार्ट किया है, जिसमें हम अलग अलग लोगों की सक्सेस स्टोरीज को लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं। हर सिटी में जाके वहाँ के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो उनको लोगों तक पहुंचाना, उनके विचार लोगों तक पहुंचाना कि कैसे उन लोगों ने क्या किया एक्स्ट्रा जिससे वो सक्सेसफुल बन गए। तो वो लोगों के सामने आए, उनकी स्टोरी भी, और उनसे लोग इंस्पायर हो, उनसे सीखे और अपने लाइफ में आगे बढ़े। ये एक रीजन है उसके पीछे। और वो हम अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उसके बाद ये जो इवेंट्स है बुक लॉन्चिंग के, तो हम पब्लिकेशन हमने स्टार्ट किया है, पर ट्रेडिशनल वे से हम ना करते हुए हम लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। वो जो चीज़ करना चाहते हैं उसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ऐसे इवेंट्स से लोगों को और उत्साहित करते हैं, लोगों को और मेहनत करने के लिए रेडी करते हैं और उनसे वो निकलवाते हैं जो भी उनके अंदर ही सब कुछ है, सिर्फ उनको पुश करना है, थोड़ा और एक्स्ट्रा के लिए पुश करना है। और लोग भी सपोर्ट करते हैं। और रिसेंटली मैं अगर आपको बात बताऊं तो ये जो 22 फरवरी का प्रोग्राम है, इसमें आधे से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुए हैं। सिर्फ पैसे नहीं आए हैं, आएंगे वो भी, पर रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुए हैं। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। पर जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो डेफिनेटली लोग सपोर्ट करते हैं। और आगे ऐसे प्रोग्राम्स हम जितना भी बेहतर हो सके वो करते रहेंगे। और ये 5 जो लाइफ के एस्पेक्ट हैं उस पर काम करते रहेंगे। और यही एबीसीडी हमेशा वर्ल्ड वाइड करेगा। वाह, सो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं आपको देती हूँ कि ये जो आने वाला रिकॉर्ड है जिसको आपने अभी से प्लान करना शुरू किया है, आप उसमें बिल्कुल 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 सक्सेसफुल रहेंगे और फिर एक बार आप शाइन होंगे दुनिया में। सो हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। और डेफिनेटली आपके जो भी प्रोग्राम्स एक नोबल कॉज के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे जरूर और ये कारवां बनता चला जाएगा और इतना बड़ा बनेगा कि आप दुनिया पे छा जाओगे। सो आ गए हैं हम इस कार्यक्रम के अंत की तरफ। तो अंत में आज के यूथ के लिए, क्योंकि आप खुद आज एक बहुत छोटी सी उम्र में आपने अपने आप को संभालते हुए अपने बड़ों के आदर्श को फॉलो किया है, तो इसके थ्रू आप आज के यूथ को, आज के जवान बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस डेफिनेटली। तो आपने जैसे यूथ का अभी बताया है, तो मैं अभी 25 इयर्स का हूँ। तो
उम्र से मुझे लगता है, और मैंने काफी सुना भी है और लोगों को देखा भी है, उम्र से कोई यूथ का लेना देना नहीं होता है। जिसके विचार तरुण है, युवा है, वही युवा है, या उनको ही युवा कहना चाहिए। तो आज 15, 16, 20, 25 साल के भी बूढ़े हैं और 70 साल के भी युवा है। तो एबीसीडी ने, या मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किए हैं ये, क्योंकि हमारे साथ एक पुणे से ही एक सर है, डॉक्टर प्रदीप देशमुख सर, 72 ईयर्स ओल्ड साइंटिस्ट है। फिर भी आज कुछ ना कुछ वेबिनार्स में वो ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं। और वो हमेशा कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हैं। तो ऐसे चिर तरुण युवक, जो हम मैं बोल सकता हूँ उनको युवक ही, तो ऐसे युवाओं से हमें प्रेरणा मिलती है। और जो भी नए नए बच्चे मतलब जब एबीसीडी से कनेक्ट होते हैं कुछ लोग, तो वो लोगों में काफी कुछ करने की इच्छा रहती है। तो युवा वो होना चाहिए जिसके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता हो, कुछ करने की उसमें चाहत हो, तो वही युवा कहता है। और मेरे नजर में हम वही कहते हैं। और मैंने ये चीजें सीखी भी है। मैं फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगा वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिनसे मैं जुड़ा, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा। और वो जो स्वाध्याय परिवार है, जिसमें मैं हमेशा वो चीज कहना चाहता हूँ कि वो जो लोग है ना, तो वो हमेशा मोटिवेट करते हैं, चाहे आपके पहचान के हो ना हो। हम नए जगह पे भी जाते हैं, वहाँ पे अगर उन लोगों से मिलते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि ये लोग नए हैं। तो वो लोगों में जो विचार है, विचारों की वजह से वैसे बन जाते हैं, और वही विचार हमें कभी निराश नहीं होने देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण हमें, अगर हम कुछ बोले तो मैं ये एक बात ये कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े आशावादी थे। और अगर युवा है आज के, तो मैं उनको बोलूंगा, अगर उनके जीवन में भी कुछ निराशा आई है, कभी फ्रस्ट्रेशन आया है, मेरे जीवन में भी काफी कुछ आया था। मैं आपको मतलब बताने में इतना टाइम भी नहीं है, और मैंने आपको बताया भी था कि 10वीं में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट उड़ गया था पढ़ाई में, नहीं तो फिर मैं बहुत अच्छे से मार्क्स से पास होता। पर एकदम ऐसे जब निराशाएं आती है ना, तो हमें निराश नहीं होना है। सबसे पहले तो हमें आशावादी बनना है, चाहे कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स आए, फेलियर्स आए। कुछ वक्त ऐसे भी आते हैं लोगों को कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, अभी क्या करें, ऐसा भी वक्त आता है। पर ऐसे वक्त में भी हम अगर आशावादी रहते हैं तो डेफिनेटली अपने साथ कुछ अच्छा होगा। पर अगर हम ही आशावादी नहीं है तो फिर कौन आशा लेके आएगा? लोगों को थोड़ी ना पता है कि आपको सक्सेसफुल बनना है। सक्सेसफुल बनना है तो अपने आप में ही हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है, और हमारे अंदर हमें ही आशा निर्माण करनी है। आशावादी रहेंगे और हमेशा कंसिस्टेंट प्रयास करेंगे तो ही सक्सेसफुल बनना है। और इसलिए मैंने जो किताबें भी लिखी है, तो मैं बेसिकली बिजनेस ट्रेनिंग के लिए ये किताबें लिखी थी। पर सक्सेसफुल बनने के लिए ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, हैबिट और क्वालिटी। इसलिए मैंने 20 हैबिट्स को कवर किया है, 5 क्वालिटीज को। और क्वालिटीज भी ऐसे होनी चाहिए जो हमें हमेशा प्रेरित करे। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सबसे पहले आशावादी हम बने, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें, और लगातार मेहनत करना चाहिए। हमने कितने एग्जांपल्स देखे, कितने सारे लोग जो बड़े बड़े हुए थे, उन्होंने क्या फेलियर्स नहीं देखे, कितनी बार फेल हुए। हमारी जितनी उम्र नहीं उतनी बार वो तो फेल हुए, फिर भी वो मेहनत करते रहे, कंसिस्टेंट रहे, और आज दुनिया में छाए हैं। तो हम इतनी छोटी उम्र में जो भी युवक है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कभी भी हारिए मत। अपने अंदर हमेशा नई नई आशाओं को निर्माण कीजिए, नई नई पॉसिबिलिटीज को देखिए। जो भी है, हम छोटी छोटी बातों पे एकदम गुस्सा होते हैं, कुछ बिगड़ जाता है, हम डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, बाद में आपको ही पछताना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप खुद समझदारी के साथ, आशा के साथ, नई क्रिएटिविटी के साथ, इमेजिनेशन के साथ, जो भी आपको अच्छा लगता है उस चीज के साथ आप आगे बढ़िए, और मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। सफलता डेफिनेटली मिलती है। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब कुछ नहीं था, आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। तो जब अपने पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ आशा हमारे अंदर रहनी चाहिए, और उस आशा के साथ हमारे पास सब कुछ आ सकता है। Wow, this is really amazing आकाश। I mean, इससे ज्यादा प्रेरणादायक बात क्या हो सकती है कि आज आप अपनी इस छोटी सी उम्र में
आपने जो मुकाम हासिल किया है, आई थिंक आज के सभी लोगों को मन से, दिमाग से, तो जो युवा हैं उनके लिए तो प्रेरणा है ही, पर खास करके आज के युवकों के लिए कि जो थोड़े से, जिनके अंदर आलस ज्यादा है क्योंकि टेक्नोलॉजी के गुलाम हो चुके हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से आपसे बड़ी कोई प्रेरणा हो नहीं सकती. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज. तो और धन्यवाद आपका कि आज आपने वक्त निकाल करके स्पॉटलाइट विद आभा में समय दिया और अपने विचारों को यहाँ पर साझा किया. थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग अस, और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा. सो थैंक यू वंस अगेन. So friends, if you have strong will with dedication and passion, you can make impossible things possible. So once again, thank you Akash for your valuable time. Friends, do share your feedback about the show in the comment section, and you are most welcome to my community if you click on the join button along with subscribe and bell button. आपका मेरी कम्युनिटी में भी स्वागत है. अगर आप मेरी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन बटन भी दिया हुआ है, आप वहां से मेरी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं. सो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ. सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड. As COVID Omicron has raised its head, please do not leave your home until it's necessary. Omicron फिर से अपने पैर पसार रहा है, इसलिए जब तक घर से ज्यादा जरूरत ना हो तब तक बाहर ना निकलें, मुंह पर मास्क लगाकर निकलें और अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखें. प्लीज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स. नमस्कार. जय हिंद. जय.